Now, first of all, you have to go through Google Chrome, and here you have to type lms.theroboticsolution.com. I'm just typing it again for the clarification. lms dot theroboticsolution.com. Right? As soon as you will open this page, you will have such kind of display for our home page. Here you will be provided your login credentials as username and password. Suppose I have just put login. It will take few moments to log in. Now, this is a dashboard what you are getting as an admin, right? Since the controls are having admin have, so this is a left pan where various columns are there like search student, dashboard, manage staff, payment reports, inquiry reports, director reports, as on the behalf of director, right? On this behalf of school admin, you have these authorities like dashboard, institute details, manage students, notification, student attendance, staff attendance, admin reports, biometric, and various managed examinations, due birthday, and a lot of things are there. Like as a head teacher, as a admin, accountant, various things are there. So today we are going to discuss about how to conduct our examination, right? So first of all, as an admin, you have to go through this one, that is manage exam, right? As soon as you will take this manage exam, we have various options like manage term. So what does it mean basically? Like we go from different school to different school, and what we observe is that every school has their own academic calendar, their own academic plannings by which they used to get the examinations, right? Some schools have the periodic test one, periodic test two before the half yearly, and after half yearly they conduct periodic test three, periodic test four, and then annual examination, right? So in this way, in general, the whole session is divided into two terms, term 1 and term 2. Term 1 is till half yearly, and term 2 from half yearly to the annual. Like this one, we divide the whole session. But it is not sure that the school is going to divide the whole session into only these two. Might be some schools are there who have three terms or four terms. So as an admin, first of all, you have to define the number of terms, whatever you are going to conduct for your school. So you will just go to the manage terms. Like an example, I'm just deleting this one. Now, this is a page what you will get, right? Suppose I have deleted all the terms, right? By this is a in fact demo version. So suppose I have this first class, so I have to add the new term, right? That you're able to see this column that has this button add new term. So what will I do? I'll just mention the name of term, like suppose I mentioned M1. Suppose as an example, add terms. Okay, serial number one, term. This is suppose term one, right? And add terms. So as soon as we will do this one, we will having the term one added. Now see, suppose class one having one section, that is section A, and suppose you have various sections, so these sections will be displayed here, right? This is term one. ऐसे अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो serial number two, term two, right? आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, right? After that, once the terms has been declared, what we have to do is we have to go for the add examination, right?
you have to go for add exams. बिकॉज ऑफ जब भी आप शेड्यूलिंग करेंगे और सबसे पहला स्टेप होता है एग्जामिनेशन कंडक्शन में, हमें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना होता है फॉर द स्टूडेंट कि वो किस तरीके से एग्जाम्स देंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, आइदर इट इज गोइंग टू बी थियोरेटिकल पार्ट और द ओरल और बोथ, लाइक दिस। तो सपोज मैं ऐड करता हूँ क्लास फर्स्ट, मैंने टिक कर दिया सेक्शन ए, राइट, सेक्शन ए हो गया। नाउ फेच डेटा, अभी हमने एक टर्म ऐड किया था, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओनली टर्म वन। अगर हमने टर्म टू ऐड किया होता तो हमें टर्म टू भी यहाँ पर शो होता, राइट। देयर इज नो आइटम इन द लिस्ट, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम नेम, सपोज हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, राइट, पीरियोडिक टेस्ट वन। नाउ ये हमने ऐड कर दिया, डन। नाउ दिस इज बाय डिफॉल्ट वी हैव डेमो अकाउंट। यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स आपको शो होंगे जो आपके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग आपने क्लास में रन करा, राइट। लेकिन एग्जांपल हमने यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखी है, तो टेस्ट टाइप कैसा होगा, इधर थियोरी और ओरल मैंने मेंशन किया। सपोज थियोरी एग्जाम होगा आउट ऑफ मार्क्स, लाइक एग्जांपल सपोज 70 मार्क्स। व्हाट विल बी द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं 15 फेब से। स्टार्ट टाइम क्या होगा हमारा, 10 AM होगा। आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर प्री डिफाइंड टाइम्स लाइक 10 AM in the time, like an example, we have the paper conduction of 2.5 hours. This is a theoretical part, right? Suppose you want to add the oral exam as well, just click this plus button and here type oral, okay, out of marks like 30 marks, date हम 15 को ही रखना चाहते हैं, आफ्टर द थ्योरी पार्ट हम इसे शुरू करना चाहते हैं, लाइक दिस 1 PM and in time it will be suppose 2 PM, right? Exactly the same thing will be done in other subjects। तो हम यहाँ से कॉपी ऑल कर देते हैं, बस हम क्या करते हैं यहाँ पे डेट बदल देते हैं, क्योंकि एक दिन में सारे पेपर्स कंडक्ट नहीं होंगे, तो मैंने डेट्स चेंज कर दी। बाकी डेटा हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा बार बार फिल करने के लिए, हमने ये कॉपी टू होकर डेट को चेंज कर दिया, राइट। Once you have defined your timetable, how to conduct the examination, what will be the schedule, you can go through the update. Now, the timetable has been done and you can view this exam in the view option, view exams, like class first, section A, term 1 था हमारा, term 1 किया हमने। Now see, this is a timetable what we have as a schedule. Mathematics theory 70 marks, 15th Feb at 10 AM and it will end at 12:30 PM. Math oral, chemistry theory, biology theory and oral, like this one. Every subject has its own timing, but here see, math is at 15 and chemistry on 16 and biology at 16. Okay, I have to edit this one because of it will be 17, I think. I forgot this to do, इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। Biology has been done 16 and 16 करके update. It has been done on 17, right? Okay, so what are the features we are getting here? Edit exam type, we can edit the type of examination like term 1, term 2, print admit card. This is the one of the best feature in this application what we have, कि आप डायरेक्टली यहाँ से अपने उस क्लास के रजिस्टर्ड बच्चों के एडमिट कार्ड्स ले सकते हैं। लाइक एग्जांपल मैंने प्रिंट एडमिट कार्ड किया, now see, this is a hall ticket for the student। if we zoom it, आप देखिए थोड़ा सा जूम करके, right?
This is the hall ticket, right? Serial number, roll number, class, date of birth, subject, date, time, and the signature of invigilator, class teacher, and principal. You can save by using the save as PDF as well for the future reference. आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अवेलेबल है। Yes. इसके बाद आप एग्जाम और भी ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। एसएमएस शेड्यूल, if you want to give the SMS of the schedule to the students, you can put only a single click. On a single click, it will be given to the student. SMS schedule, SMS result. Once the paper has been done, evaluation has been done, reports have been generated. So the result can be displayed to the student through online, through the SMS, as well as the result option we have, and we will discuss in this session as well. After that, notify teachers. You can also notify the teachers who are concerned with these subjects that their examination is going to conduct on these date at the timing. So you can notify your teachers as well related to the exams. Now, calculate rank. Once the examination has been done, suppose you have 50 students in a classroom. So it is also an important role that we have to calculate the rank of the student, which one is going to have, top 5 positions, top 10 positions. So you can calculate the rank as well as this is the delete, or you can delete the exams. Now this is the freeze all option. What does it mean is after the examination, the evaluation has been done, the result will be uploaded. But sometimes we have seen that some teachers are very careless. So what happens if you have given some deadline that you have to do this work, this you have to upload your marks within 2 days? Might be because of some certain cases someone has ignored this and he did not uploaded his marks. So in this case, if you freeze all, so after the deadline, anyone will not able to upload. मतलब कहने का आपके पास कई सारी क्लासेस हैं, अब इट इज नॉट इजी कि किसने कब अपलोड किया हुआ है। तो आप जब एक डेडलाइन लगा देंगे कि हाँ इस क्राइटेरिया के बाद, इस 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद नंबर्स अपलोड नहीं होंगे, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। और जब आप सेट कर देंगे तो 2 दिन के बाद मार्क्स अपलोड नहीं होंगे। एग्जैक्टली। इसके बाद शो ऑल ऑन ऐप। These schedules can be displayed to the student on the application of our robotics. Roboteam is also available, जो आपके स्कूल का एक एप्लीकेशन बच्चों को जाता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू भी बच्चा इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है शेड्यूल। तो उसको हम यहाँ से परमिट देते हैं शो ऑल ऑन ऐप। सपोज यस, तो ये अब बच्चे को ऐप पे दिखेगा। ठीक है, दिस इज देखिए अभी शो हो रहा है ना, शोइंग ऑन द एप्लीकेशन। ये आपके पास ऑप्शन है। So these are the things like ये आपके पास एग्जाम्स हो गए, एग्जाम का शेड्यूल हो गया, बच्चों को शेड्यूल चला गया, बच्चा एग्जाम देगा। एग्जाम के बाद आप आएंगे एड रिजल्ट। एड रिजल्ट क्लास 1 सेक्शन, इसी क्लास का हमने एग्जाम कंडक्ट किया है। ओके, मेन एग्जाम सेलेक्ट टाइप पीरियोडिक टेस्ट 1 का सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं आपके पास बाय डिफॉल्ट। नाउ सी, this is the simple sheet where the marks you can fill. There are two options by which we can do the things like update manually and use Excel. सपोज आप एक्सेल चाहते हैं कि आपने टीचर को क्या किया, एक्सेल फॉर्मेट दे दिया कि आप अपने मार्क्स बच्चों के इस पे बच्चों ने मार्क्स कंडक्ट कीजिए। देखिए आपके पास एक फॉर्मेट खुल के आ जाता है बाय डिफॉल्ट। लाइक दिस। So these are the various options what we have: reference ID, student name, class name, serial number, roll number, theory mathematics, oral chemistry, oral theory biology, oral biology, right? इस तरीके के एक्सेल शीट है। You can share this with
the teachers as well, and they fill, and उसके बाद इसको आप एक्सेल पे लेके अपलोड कर सकते हैं, राइट? यहाँ से चूज फाइल से जाके आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पुट वन बाय वन लाइक दिस वन। इमेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मैथ में मान लीजिए 70 में 67, मार्क्स 30 में 29, 56, 28, 56, 30, राइट? ये आपने अपडेट कर, ये एब्सेंट नॉन एब्सेंट, कभी कभी बच्चा एब्सेंट होता है तो ये भी आप कर सकते हैं। अपडेट हो गया। नाउ हाउ यू विल सी द रिजल्ट्स? We will discuss on that. So we were at this place, at we were going to see like results, right? Add results, class first, section A, what is the time of examination, the exam. So by this, we can add manually by filling the data, and you can use the Excel sheet as well, so that the sheet can be shared to the teachers so that they can fill in the required format, in the same format as the system requires. Once the data has been filled, you have to see the results. So go to the result section. Here classes first, section. Now the term first, periodic test 1. This is the result of the student in the table format, like the name of the student, SAR number, theory, oral, subject wise. These are subjects. These are chemistry, biology, whatever. This is a admin panel where you can have the details of all students, right? And here you can give the student results as a, you know, individual student आप share कर सकते हैं by giving the result in this layout. This is a result of the student, like mathematics, maximum marks, right? Oral marks obtained, and the total marks. So the total marks was 300 and obtained mark 276. This is a percentage. Name of a student, father's name, SR number, exam, class, section, parent signature, principal signature, and teacher signature. So in this way, the result will be automatically generated once the data has been filled. This result carries only the academic part, like the test, what the student has given. But if you want to add something more, I'm just sharing all the things here. And this is admit card, as we have already discussed, that the student can have their admit cards. We can provide them through this platform as well. It's because of internet speed, it's I think slow, but we have neither results. This is a tabulated result for class A, 1A, right? The student name and his marks, what he has obtained in the subject wise and the partition wise, like theory में कितने oral, ये आपका एक cumulative result बनकर तैयार हो जाएगा पूरी class से. Now combined result, if we have various, okay. You can SMS this result to the parents by clicking this SMS result. अब आप कैलकुलेट रैंक कर सकते हैं, एप्लीकेशन से आप इसको हाइड कर सकते हैं,
एक्सपोर्ट एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एग्जाम की रिपोर्ट एक एक्सेल फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, जो आप अपने डेटाबेस में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या टीचर उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन क्लास स्टूडेंट नेम फॉर दिस theory oral, everyone will be shown. After that, uh, this is a tabular format and you can analyze the result as well, like this. This is a analysis of the result कि मैथ्स में क्या परसेंटेज रहे बच्चे के क्लास में, मिनिमम 96, ये चूंकि एक ही बच्चे का रिजल्ट कंपाइल हुआ है, एक ही बच्चे का दैट इज वाइट इज शोइंग लाइक दिस। जब आपकी पूरी क्लास की बात होगी, whenever we talk about a whole class, so it will be vary, like some student has got the maximum marks and some has minimum. So here you can analyze the average marks for individual subject, right? So you can go through what is the average remark for the teacher from the student as well, like chemistry minimum marks, maximum and average, like biology. So in this manner you can have this kind of analysis as well for your results, right? Now grades numbers, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेड सेटिंग पे आएंगे. Now we can have multiple options, right? Like in general 91 से परसेंट के ऊपर हम ग्रेड क्या देते हैं, A1 देते हैं. नंबर्स में हम अगर बात करें 81 के ऊपर A2 B1. तो ये ग्रेड सिस्टम है, ये परसेंटेज के रैंक्स हैं आपके कि इस इंटरवल में क्या ग्रेड हम डिफाइन करेंगे, एंड द ग्रेड इन नंबर्स, राइट? इसको हम अपडेट कर देते हैं, या आप चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपके यहाँ जो भी सिस्टम फॉलो होता है. नाउ को स्कॉलिस्टिक स्किल्स, यहाँ पर हम बच्चे के लाइक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड और भी स्किल्स अगर हम ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट? लाइक जनरल बिहेवियर, ये जनरल बिहेवियर सपोज डाल दिया, हमने ऐड करना था, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जनरल बिहेवियर आ गया, राइट? इसके अकॉर्डिंग हम ये चीज कर सकते हैं. इसको हम ग्रेड कर सकते हैं, इन एक्टिविटीज को, इन स्किल्स को ग्रेड कर सकते हैं, लाइक ग्रेड्स ए बी सी. और अगर आप ग्रेड्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो grades has been added. For scholastic results, you will choose the class section. Now, term 1. जितने आपने स्किल्स ऐड किए वो यहाँ दिखेगा. नाउ यूज स्किल, आप यहाँ पे भी एक्सेल शीट्स अपलोड कर सकते हैं और आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं. जैसे मैंने हेल्थ में दे दिया सी, आर्ट में ए, बी, जनरल में मान लिया. हाँ, फिर अब जब ये आपके को स्कॉलरशिप रिजल्ट्स के भी ग्रेड आपने कर लिए हैं, तो अब फाइनल रिपोर्ट कार्ड पे आप जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट कार्ड कैसे कैसे आपके पास फॉर्मेट से एक सिंपल रिपोर्ट कार्ड होगा, इन विच इट कंसिस्ट ऑफ एकेडमिक्स एज वेल एज आपके को स्कॉलरशिप के जो आपने यू कैन हैव शो, आप शो कर सकते हैं मेन सब्जेक्ट शो करना है कि नहीं, रिजल्ट में शो करना है, परसेंटेज शो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सी सब्जेक्ट्स हो गए, अदर सब्जेक्ट्स अगर है तो आप उनको भी शो कर सकते हैं, शो ग्रेड, आप ग्रेड शो कर सकते हैं, ठीक है. पीरियोडिक टेस्ट आपका जो है 100 में था, सेपरेट कर सकते हैं. कोर्स लिस्ट स्किल्स आप शो करना चाहें देन ओके. और अब इसके बाद आप देखिए अगर प्रिंट ऑल, नो दिस इज अ रिजल्ट व्हाट वी हैव. Sorry. The upper part consisting of the academic parts, let me see, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ. Like this one, right? Report card for the student. ये इसके एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गए, ठीक है. इसके हमने ग्रेड चूंकि वहां रखे थे कि हम ग्रेड शो करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे इसके ग्रेड भी शो कर दिए मार्क्स के साथ. इसके बाद को स्कॉलरशिप आइडियाज,
इसके भी ग्रेड्स हमने शो कर दी। और ना, अब ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा किस टाइप का है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कौन सा ग्रेड किस मार्क के रेंज को जाता है। द पेरेंट कैन हैव द एक्सेस कि वो नहीं जान सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया होगा। आफ्टर दैट फिर से वापस आते हैं, इसको हम एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेट भी कर सकते हैं कि हम क्या क्या शो करना चाहते हैं रिजल्ट में। लाइक स्टूडेंट फोटो शो करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेड शो करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे, यहाँ से भी देखिए एसआर नंबर, रोल नंबर, अगर हम एसआर नंबर हटाना चाहते हैं तो उसको हटा सकते हैं, हम एड्रेस हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, कॉन्टेक्ट हटाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। दीज आर चॉइसेस व्हाट इज गिवन टू राइट। तो इस तरीके से आप इसे अपडेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर अपडेशन देखिए अभी चीजें आपको यहाँ पे बदली। नौ से अब आप देखिए रिजल्ट पे ध्यान से, तो ग्रेडिंग स्किल्स आपके एकेडमिक अलग हो गए, स्कॉलर्स आपके कोर स्कॉलर्स अलग हो गए। साथ ही साथ ऊपर के डिटेल्स देखिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें हमने हटा दी। तो ये रिजल्ट कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फोटोग्राफ का ऑप्शन आपके पास आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये तो एक जनरल फॉर्मेट है हमारा जो प्लेटफॉर्म का है। बाकी सीबीएसई जिस प्रकार का देती है हम वो भी आपको शो कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल है हमारे पास। सीबीएसई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। सर्च रिजल्ट, यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट एंड टेस्ट, एनुअल एग्जामिनेशन, अदर सब्जेक्ट है नहीं, होलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, नो, गो टू पेंट ऑप्शन। नाउ सी, ये आपका आ गया सीबीएसई रैंक बेसिस पर आपके पास। और मैं इसको शो करता हूँ, सीबीएसई रिपोर्ट डाउन वाइज सिस्टम। Now, this is the format of CBSE what we have. So this is sir how about all about how we will going to conduct the test as well as how the report card will be generated. So I'm just recording of it to my face. So I'm just going to another thing, that is online examination. How we have to do this. Now, content admin option में we have question bank and we have online test. So here we will go for the online test. We will add the test. Now, some basic details we have to fill, like test का name क्या होगा, suppose half yearly, reference ID, suppose paper code कुछ हमारे पास है TAS 101. What is the test type, like online, offline and offline. Online test uses type
इंस्टीट्यूट लेवल पे टेस्ट है, और वी आर गोइंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट लाइक मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और एडमिशन टेस्ट. सो वी कैन हैव वेरियस ऑप्शंस हियर. सपोज इंस्टीट्यूट टाइप टेस्ट हो गया, टेस्ट ग्रुप मीडियम, another configuration. By default we have some samples here, so when the things will be done, then we can have customize this one. Like suppose I'm working for NEET, exam type NEET हो गया, instructions NEET के according हो गए 720 marks, duration 180 minutes, result publish date. आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं रिजल्ट जब भी आप चाहते हैं. सपोज मैंने 28 को डाल दिया दोपहर के टाइम. इंग्लिश मीडियम होगा, बाइलिंगुअल होगा, इट इज अप टू यू कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ मोड ऑफ पेपर विल बी. तो बाय डिफॉल्ट सपोज हमने इंग्लिश मेंशन किया हुआ है. विजिबल टू स्टूडेंट, यस ये विजिबल स्टूडेंट को कर सकते हैं आप. ये रिजल्ट पब्लिश कब होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, एंड दिस इज अ टेम्पलेट. How will it will look like when the student is going to conduct his examination on mobile application. So we can select the templates. Like we have three things here: the first one, this second one, and the third one, right? So whatever you want to select, just go and select it, and that done. So the template has been done. Now after that, अभी हम इसको रेडी नहीं कर रहे हैं, पहले हम पूरा एडिट कर लेंगे, उसके बाद हम रात में इसको सेव. Now we have various columns like test details, subjects, assign class and timings, assign syllabus, add questions, test setting, right? So अब हम यहाँ पे subjects ऐड करेंगे. So by default हमारे पास subject जो होंगे वो physics, history और biology होगी नीट में. तो यहाँ पर जो standard है नीट का उसके according 45 questions आते हैं. 45 questions short question होंगे, MCQs होंगे. These are the various type of questions, descriptive होंगे, paragraph होंगे, like long, short, very short. Number of questions 45, marks per question 4, negative mark is there or not, that is 1. Maximum allowed attempts, कितने क्वेश्चंस कर सकता है, एक क्वेश्चन को एक बार कर सकता है. 45 क्वेश्चन, that is 45 attempts. इसी से केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में चूंकि 90 होते हैं तो बायोलॉजी का हमने चेंज कर दिया. तो ये आप एडिट भी कर सकते हैं. सपोज आप चाहते हैं 45 की जगह हम 50 देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस वेरी करने होंगे, यहाँ पर भी 50 करना होगा. इस अकॉर्डिंगली आप इसे अपडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. ये जब आप सेट कर लेंगे कि विच सब्जेक्ट कंटेन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एंड हाउ much marks it will carry, and either we are going to get give the negative marking system or not, we can have this option that हमने 0 कर दिया या हम 2 कर दिया, up to you. Once this has been done, just save this one. Now the next part is assign class and timings, right? हम यहाँ से next आते हैं. Now किस क्लास के लिए ये पेपर देने वाले हैं, सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया के लिए डालने वाले. इस क्लास के लिए पेपर शेड्यूल हो गया. कॉमन डेट, सेक्शन वाइज डेट एंड टाइम. लाइक एग्जांपल कि अभी तो हमारे पास एक सेक्शन है, मल्टीपल सेक्शंस होते हैं. सपोज ए बी सी डी, हम चाहते हैं कि नहीं ए और बी का पहले हो जाए, सी और डी का बाद में हो जाए. सो वी कैन हैव दीज ऑप्शंस कि कॉमन डेट एंड टाइम होगा या सेक्शन वाइज हम इसको चेंज करेंगे. सो स्टार्ट डेट एंड टाइम हमने कर दिया, सपोज टाइमिंग हमने डाल दी. चलिए ठीक है, टाइम बदल देते हैं, फिलहाल चेंज कर देते हैं. हिंट टाइम है इसका हमारा 15 तारीख को ही 10 बजे शुरू किया, तो हम इसको 1 बजे हिंट कर लेते हैं. सेव डेट. The paper timing has been done. Now test automated features, result publish date and time. रिजल्ट को पब्लिश करना चाहते हैं, 28 तारीख को बात हो चुकी थी, वहाँ पे हमने पहले अपडेट किया हुआ है. सबमिट इन प्रोग्रेस अटेम्प्ट, इसको ऑन करने से क्या होगा कि इन बिटवीन जब पेपर इज गोइंग ऑन, अगर स्टूडेंट छोड़ना चाहता है तो उस टाइम पे भी वो पेपर को सबमिट कर सकता है. एट एनी स्टेप द स्टूडेंट कैन सबमिट हिज पेपर. और अगर ऑफ कर देंगे तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स उसके बाद ही बच्चे का सबमिट होगा. अपडेट कर दिया. नेक्स्ट, नो वी विल हैव देयर टॉपिक्स, हम यहाँ सेंड करेंगे. लाइक फिजिक्स में डाल दें मोशन, ग्रेविटेशन,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मोर, केमिस्ट्री में डाल दिया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी में डाल दिया, and anything else like a human body, what assigned syllabus, the syllabus assign कर दिया. Once syllabus has been done, you will go to the next where you have to add the questions. Like physics में 45, chemistry में 45, biology में 90. There are 3 options by which we can add the questions. Like some question bank we are offering inbuilt जो प्लेटफॉर्म पे है आपके पास, आप वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने बना कर रखा हुआ वर्ड पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, उस पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं. आप अगर मैनुअली फिल करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सपोज क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट करना चाहते हैं, टाइप ऑफ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का सेट बने हुए. तो हमें क्या करना है, हमें केवल सेलेक्ट करना है क्वेश्चन को रीड करते हुए कौन सा क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. यहाँ दे रखते हैं क्वेश्चन से मिलाते हैं, उसको लेकर चलते हैं. ऐसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम इसे यहाँ फिल्टर भी कर सकते हैं फिलहाल. लाइक एन एग्जांपल क्लास किस स्टैंडर्ड का पेपर चाहते हैं, सपोज क्लास 12 के केस को लेना चाहते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, व्हाट द टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप चूंकि एसक्यू ही है तो एसक्यू नहीं होंगे, ठीक है. इसको लो वेरीफाइड, ये वेरीफाइड पेपर्स होंगे हमारे क्वेश्चंस. एग्जाम ले लेते हैं जीमेल के सपोज. Now filter by the base chapters, select syllabus आपके पास थे, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर्स आ गए आपके पास. ग्रेविटेशन हमने दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया था, और क्या दिया था हमने, एग्जाम्पल मोशन मोशन मोशन. फिलहाल आप टॉपिक यहाँ से ले सकते हैं. इसके बाद सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने चैप्टर ग्रेविटेशन फेच कर लिया. अब मुझे ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस मिलने शुरू हो गए. इन दिस वे द टॉपिक व्हाटएवर वी हैव सेलेक्टेड उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते चलेंगे, और हम इन क्वेश्चंस को बाय डिफॉल्ट टिक करते चलेंगे. these are the inbuilt question papers what we have. रैंडमली क्वेश्चंस ले लिए हमने, तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस तो टेस्ट करूंगा. क्वेश्चंस हैज बीन एडेड फॉर फिजिक्स, but it is only 31 क्वेश्चन and we have to add 45. तो अभी हम रैंडमली ले सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. ये फिजिक्स के हो जाएंगे आपके पास. इसके बाद बैक टू द टेस्ट, अब हम केमिस्ट्री पे आते हैं. ऐसे ही हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्वेश्चन फिलअप करेंगे, सारी चीज़ों को फिल्टर लगाकर what we can do is we can have some questions here. Questions यहाँ पे भी ऐड कर दिए. Like in the same manner we will get back to the test. केमिस्ट्री में के बाद हम बायोलॉजी भी ऐड करेंगे, या आप पूरे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. चूंकि since we are working for the demo version only, so I'm sharing some ways by which now add to test. ये तो हो गया आपके पास टेस्ट. अब अगर आप चाहते हैं कि हम ऐड क्वेश्चंस मैन्युअली करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कॉपी, यहाँ पे देखिए वर्ड फॉर्मेट आ गया. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज, या एग्जांपल दीजिए सेल इज, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन एससीक्यू. सो द ऑप्शन हियर, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा पहले डालेंगे. स्ट्रक्चर टिश्यू
Manually you have to fill this one, right? Live organ, suppose nothing, and none of these. इसके बाद सपोज मैंने टिक कर दिया एंड ऐड मोर ऑप्शंस अगर आप करना चाहते हो दैन अदरवाइज। इसके बाद स्टैंडर्ड्स, किस स्टैंडर्ड से रिलेटेड है ये? 10th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी का है। नो सॉल्यूशन, ऐड टेक्स्ट, ऐड सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर ठीक है, टैग चाहते हैं तो टैग डाल सकते हैं, अदरवाइज ऐड क्वेश्चन। अभी आपके पास बायोलॉजी में ये क्वेश्चन ऐड हो चुका है, ठीक है, ये cell is right. So in this manner you can add manually the question papers, import कर सकते हैं और आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। फिर देन नेक्स्ट अब असाइनमेंट एंड ग्रुपिंग, कि क्या आप क्वेश्चन पेपर को आप शफल करना चाहते हैं, यस और नो? तो विद इन द सब्जेक्ट, यस विद इन सब्जेक्ट वो शफल हो जाएगा। ग्रुप क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ग्रुप करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को, तो ये भी कर सकते हैं आप। टेस्ट ऑप्शन होगा कि मार्क्स फॉर द टेस्ट, शो एनालिसिस बिफोर रिजल्ट पब्लिश, स्टूडेंट रैंकिंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? कि टेस्ट बच्चे ने दे दिया तो मार्क्स डिस्प्ले हो जाए, एनालिसिस बिफोर द रिजल्ट, रिजल्ट के पब्लिश होने के पहले ही एनालिसिस पब्लिश हो जाए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। टाइम सेटिंग, द कैंडिडेट कैन सबमिट द टेस्ट बिफोर टाइम इज ओवर, यस और नो? अगर यस कर देंगे तो वो जैसे कंप्लीट करेगा वो कंप्लीट करके जा सकता है। क्लॉक फॉर्मेट कैसा होगा? आर मिनट का या मिनट सेकेंड का? आर मिनट का सेव कर दिया, देन फिनिश। नाउ दिस इज द पेपर व्हाट वी हैव क्रिएटेड फॉर द स्टूडेंट्स। 15 फरवरी को 10 बजे शुरू होगा। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है रेडी नॉट रेडी, आंसर कीज नॉट एडेड। एक क्वेश्चन था जो हमने नॉट ऐड किया हुआ था, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग दैट नॉट रेडी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एडिट पे आ सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम ना आप उसमें ऐड करना चाहते हो ऐड भी कर सकते हैं। इसको से नाउ सी कुछ क्वेश्चंस का आंसर अभी भी नहीं आया। ओके, रेडी के लिए देख लेते हैं कहाँ से पब्लिश करना होगा हमें। इसके लिए स्टार्टिंग पे आएंगे और देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन हमने छोड़ा था, इज दिस टेस्ट टू रेडी टू पब्लिश, रेडी। ओके, नाउ अब ये आपका नेक्स्ट, नाउ ये क्रेडेंशियल्स आप भेज सकते हैं उन कैंडिडेट्स को जो एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। यहाँ से आप सेंड क्रेडेंशियल्स करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन डन, वो वहाँ की ओर ऑप्शन आएगा, डियर स्टूडेंट डाउनलोड दिस वन, डिफॉल्ट पासवर्ड लाइक दिस वन। और इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पेपर सबमिट करने के, पेपर पब्लिश करने के बाद ऑप्शंस मिलते हैं। टेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं या टेस्ट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ये आपका पेपर है ना, यहाँ पर ये केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, ये पेपर्स आपके बाय डिफॉल्ट आपके पास आ सकते हैं, आप इन्हें किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं केमिस्ट्री, और यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एडिट यू कैन एडिट एज वेल। एक्सपोर्ट टेक्स्ट, इसको आप सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके डाउनलोड अकॉर्डिंग टू योर। so this is the way by which we can have this types of online test. Once the test will be done,
it has been published, it has been started, and the student has given his exams. So here we can have the cumulative result. हम यहाँ पे रिजल्ट्स भी अपीयर कर सकते हैं बच्चे का, वो जब भी पेपर देगा तो उसके रिजल्ट्स भी शो हो जाएंगे अलग अलग एनालिटिकल फॉर्म। तो ये तो अभी हमने फिलहाल पेपर कंडक्ट नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग, अदरवाइज क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। So in this manner, we can have the results for the online exams what we have taken, and this result analysis will be in various forms. एक सिंपल मॉड्यूल नहीं होगा, कई सारे तरीके से हमने यहाँ पे रिजल्ट कंपाइल किया हुआ है, लाइक क्वेश्चन वाइज, सब्जेक्ट वाइज कि बच्चा किस टॉपिक पे प्रॉब्लमेटिक है, बच्चा किस सब्जेक्ट में वीकर हो रहा है, उस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल है तो उस पे किन बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छे हैं इस कैंडिडेट से या किन के इनसे ज़्यादा बुरे हैं। So that is kind of result analysis we have, and I hope once we have done with this, we will have any other session to get the result someday. So, so that's all.